Hello friends, I am Dr. Rashmi Parihar from Government E. Raghavendra Rao Postgraduate Science College, Bilaspur. Today I will tell you about the structure of proteins, that is primary, secondary, tertiary and quaternary. Before learning the structure of protein, we must know what are proteins. So proteins are complicated macromolecules. Proteins are complicated macromolecules. They are the complex organic nitrogenous substances, that means they contain nitrogen. They play important role in functioning of life as enzymes and hormones. The important constituents are carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen and sometimes sulfur. And the amino acids are the building blocks of proteins, that is proteins are made up of amino acids. So now we must know what are amino acid, what is the structure of amino acid. So in the last slide I have told you that proteins are made up of polypeptides. Poly means many. And what are polypeptides? They are the chains of amino acids. And what are amino acids? They are the building blocks of the proteins. See, this is amino acid number 1, this is amino acid 2, 3, 4 and this is 5. They are linked to each other by a bond which is called as a peptide bond. So, the polypeptide means many amino acids in a chain. So, we must know the structure of a amino acid. So, amino acid has two functional groups, that is one is the COOH group and another is the NH2 group. This particular nucleus, it is common in all the amino acids except proline, and the amino acids vary with the with respect to this R group, that is the side chain. Now as we know, they are the proteins are the polypeptides. That means two amino acids, the amino acids are linked with each other. How it happens? This is amino acid 1, this is amino acid 2. So the carboxy end of one amino acid and the amino group of the another amino acid, they combine, a water molecule is removed and a bond is formed. So this particular bond is called, between the two amino acids, is called as the peptide bond, that is CONH. And likewise all the amino acids are joined to each other by the help of this peptide bond and a water molecule is removed. So that means the formation of a peptide chain is a multi-dehydration process. See, you can see in this figure the amino acids are linked to each other through this peptide bond CONH. Here also CONH. So likewise the different amino acids, they are linked to each other through this peptide bond. So if there are two amino acids in a chain, it is a dipeptide. If there are three amino acids, it is a tripeptide. If they are 2 to 10 amino acids, then it is called as a oligopeptide. If there are more than 10 amino acids, it is called as a polypeptide. And macropeptide means if there are more than 100 amino acids in a chain, it is called as a macropeptide. Now one thing you have to note, different proteins have different amino acid contents. हर प्रोटीन में का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो अलग अलग होगा और हर प्रोटीन में अलग अलग नंबर होगा अमीनो एसिड्स का, दैट इज स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोटीन. एंड डिफरेंट प्रोटीन्स हैव डिफरेंट वेरीड अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर अमीनो एसिड. किसी एक अमीनो एसिड का भी जो अमाउंट है वो हर प्रोटीन में अलग अलग होता है. सो यू नो द मैजिक 20, द 20 अमीनो एसिड्स. So all the proteins in our body, they are made up of these 20 amino acids. No doubt there are more than 100 amino acids, पर जो 20 अमीनो एसिड्स है जिनको हम प्राइमरी अमीनो एसिड्स कहते हैं, उन्हीं से ये हमारे बॉडी के सारे प्रोटीन्स बनते हैं. आप ये चेन है अमीनो एसिड्स की, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. तो एक अमीनो एसिड को, चेन के एक अमीनो एसिड को हम नाम देते हैं अमीनो एसिड रेसिड्यूज.
अब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है, द प्रोटीन्स आर अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, सो देयर मस्ट बी सम बॉन्ड्स दैट स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हमने देखा अभी तक कि प्रोटीन सिंथेसिस अ मल्टीपल डिहाइड्रेशन प्रोसेस, मतलब जो CONH बॉन्ड बनता है या जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, उसमें हर बॉन्ड बनने में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। सो the interact if more than one amino acid chains interact with each other, they are stabilized by involvement of the different types of chemical bonds। और ये बॉन्ड जो होते हैं ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट। कोवेलेंट के अंतर्गत हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे अभी हमने देखा CONH बॉन्ड, और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के बीच में जो बनता है, ये दो का नेचर होता है कोवेलेंट। और नॉन कोवेलेंट के अंतर्गत आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। अब ये किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, वी विल सी देम इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। तो प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स है, एक तो प्राइमरी बॉन्ड और दूसरा होता है सेकेंडरी बॉन्ड। तो प्राइमरी बॉन्ड में आता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन। सेकेंडरी बॉन्ड्स के अंतर्गत हम देखेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, एंड आयोनिक और द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द प्राइमरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड जैसे कि मैंने बताया, दो अमीनो एसिड्स के बीच का जो बॉन्ड है, इट इज कॉल्ड एज द CONH बॉन्ड। सो इट हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब ये जो है, जो ये दो कार्बन एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है, जो एंगल है, इसको हम कहते हैं साई। और जो नाइट्रोजन और ये कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इसे हम डिनोट करते हैं फाई से। ये -180 से +180 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं, पर चूंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए यहाँ पर जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। सो द मेन बैकबोन जो है प्रोटीन चेन का, अमीनो एसिड चेन का, वो जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। नाउ द सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड के अंतर्गत आएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि हमने पिछले फिगर में देखा। एंड दिस इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिस्टीन रेसिड्यूज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाहाइड्रल ग्रुप। इसमें जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब जो दो सल्फर एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो 2 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होता है। और ये स्ट्रॉन्गर है अदर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स की अपेक्षा, पर जरा से भी स्लाइट, मतलब स्लाइट एक्सटेंशन से भी ये टूट जाते हैं। इसीलिए ये जो है ये प्राइमरी बॉन्ड नहीं हो सकते। ये जो है इनका विशेषता है कि दे स्टेबलाइज द से टर्शियरी स्ट्रक्चर। नाउ सी हाउ इट इज फॉर्म्ड। दीज आर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ये दो अमीनो एसिड पास में आएंगे, इसका ऑक्सीडेशन होगा और इस तरीके से ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो कोवेलेंट नेचर के बॉन्ड जो हमने देखे उनमें आता है पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरा है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। नाउ द सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड में आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ टू नेबरिंग एटम्स, स्पेशली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सेकेंडरी बॉन्ड के अंतर्गत जो दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। सो जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उसमें जो जिनके पास हाइड्रोफोबिक साइड चेन है, जिसमें हमारे आते हैं एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिलिनएलेनिन। ये इनमें जो साइड चेन है ये इसका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक, और इनमें वाटर मॉलिक्यूल से बिल्कुल नील वाटर अट्रैक्शन होता है। तो इनके जो आर ग्रुप्स हैं, जो हमने पहले की स्लाइड में देखा आर ग्रुप कहाँ होता है, ये अपने आपस में ही इंटरेक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं
इन absence ऑफ वाटर, और ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज द आयोनिक और द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. आयंस मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज होगा, प्लस या माइनस. सो आयंस, ऑल ऑफ यू नो, आयंस विथ सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, और जो अपोजिट वाले हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. सो द बॉन्ड्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज साइड चेन्स, they will have strong attraction, but that attraction will be weaker than the hydrogen bonds. और इस तरह के जो bonds होते हैं they maintain the tertiary structure. अब ये हम लोगों ने बॉन्ड्स देख लिए कि कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. सो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, we there are 4 different structural levels of organizations, and these levels were defined by Linderstrom Lang. और ये स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. इसको हम इस तरह से फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री भी कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज फर्स्ट डिग्री. एंड व्हाट इज इट? इट इज अ सिंपल चेन ऑफ अमीनो एसिड. जैसे कि हम पिछले स्लाइड्स में देखते आ रहे हैं, इनमें 2 अमीनो एसिड्स के बीच का जो बॉन्ड था वो कौन सा था? इट वाज द पेप्टाइड बॉन्ड. सो ऑल पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन अकर इन ट्रांसफॉर्म. जब जो बॉन्ड्स में जो बॉन्ड्स है अगर एक तरफ होते तो हम इसको सिस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और जब ये अपोजिट साइड में होते तो हम इसे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. तो जो CN बॉन्ड है इट डज नॉट फ्रीली रोटेट ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज इट इज रिजिड एंड प्लेनर. ये हम पहले देख चुके हैं. ये भी देखा था हमने, ये जो C और C के बीच का बॉन्ड है इसे हम साई कहते हैं, और जो N और C के बीच का बॉन्ड है इसे हम फाई से डिनोट करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड CONH. तो इस तरीके से जब चेन जुड़ती है अमीनो एसिड की, तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड है ये बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड्स के बीच में. प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब सिंपल चेन ऑफ अमीनो एसिड. अब हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर सर्वप्रथम पॉलिंग और कोरे ने 1951 में दिया था. एंड उन्होंने बताया था कि देर आर 2 रेगुलर टाइप्स, दैट इज द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट. इनको स्टेबलाइज करने वाले बॉन्ड्स होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड. अब यहाँ पे कैसे होगा ये हम अगले स्लाइड में देखते हैं. ये आप देख रहे हैं दिस इज द सिंपल चेन ऑफ अमीनो एसिड. अब यहाँ हम देखेंगे ये पहले अमीनो एसिड में और चौथे अमीनो एसिड के हाइड्रोजन में ये बॉन्ड बनता है. इसी तरीके से इस हाइड्रोजन में और इधर ऑक्सीजन में ये बॉन्ड बनेगा. तो जब इन दोनों में बॉन्ड बनेगा तो ये जो कम अमीनो एसिड्स जो अभी दूर दिख रहे हैं ये पास आ जाएंगे, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही ये बॉन्डिंग हो रही है कि पहले और चौथे में. तो एट पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हमको एक डिफाइंड हेलिक्स मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया. So as this forms a helix, it is called as a alpha helix structure. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में इसके हर हेलिक्स टर्न में 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं. जैसे कि आप देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में देर आर 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न. ऐसे इधर यहाँ पे अमीनो एसिड के 3.6 रेसिड्यूज पर टर्न में आते हैं, और इसका जो पिच होता है हेलिक्स का दैट इज 0.54 नैनोमीटर्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 अमीनो एसिड रेसिड्यूज इज 0.15 नैनोमीटर्स. इस प्रकार का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अल्फा केराटिन में पाया जाता है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है शीट के आकार में, जिससे हमने कहा है बीटा प्लीटेड शीट. तो ये एक अमीनो एसिड की चेन है, आप देख रहे हैं दिस इज द फर्स्ट चेन एंड दिस इज द सेकंड चेन.
अब ये दोनों चेन कैसे इंटरेक्ट करेंगी, एक के ऊपर ये चेन्स है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये बॉन्ड बनेगा। तो जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर ये NH ग्रुप है, अमीनो एसिड में आपने देखा चेन में एक अमीनो टर्मिनस होता है और एक आपका होता है कार्बोक्सी टर्मिनस। तो अगर ये एक ही दिशा में अलाइंड है तो हम इसे कहते हैं पैरेलल चेन्स, और अगर ये अपोजिट दिशा में है तो हम इसे कहते हैं एंटी पैरेलल चेन। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये COH और यहाँ पे ये NH ग्रुप है। दूसरी चेन यहाँ पे CO है और यहाँ पे NH है, इसलिए ये एंटी पैरेलल हो गई और यहाँ पे ये हो गई आपकी पैरेलल चेन्स। तो जो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैं दे आर मोर स्टेबल ड्यू टू द कोलिनियर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे बॉन्डिंग इस तरीके से हो रही है। तो ये दिस इज द कोलिनियर बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये सिल्क फाइब्रोइन के प्रोटीन में, ग्लोबुलर प्रोटीन में ये पाए जाते हैं। आप जैसे आप देखते हैं एक तो सेल का साइज इतना छोटा होता है, सेल के अंदर सब चीज़ें होती है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्रोमोसोम है, सब चीज़ें हैं उसमें, tRNA rRNA है, उसमें आपका प्रोटीन भी है। तो आप सोचिए सेल का साइज खुद इतना छोटा है, उसमें इतनी सारी चीज़ों को आना है, जगह बनाना है, तो हमको इस प्रोटीन को और फोल्ड करना होगा, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रस्सी का टुकड़ा दे दूं लंबा और कहूं कि आप इसे अपने जेब में रखिए, तो आप क्या करेंगे, इसको एट रैंडमली ऐसे फोल्ड कर लेंगे, कॉइल कर लेंगे, देन यू विल पुट इट इनटू योर पॉकेट। तो इस केस में क्या हो गया, मान लो यहाँ पे ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये ऐसे तो लीनियर स्ट्रक्चर में एक दूसरे से दूर दूर हैं, पर जब हम इसको एटेंडमली फोल्ड करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है ये दो अमीनो एसिड जो पहले दूर थे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फोल्ड करने के कारण इस तरीके से ये पास पास आ गए। अब ये दोनों, ये इस तरीके से दोनों पास आ गए और यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से टर्शियरी स्ट्रक्चर में और ज़्यादा फोल्डिंग होती है और टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है विच इज़ अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो it refers to the, just as I have told you, it refers to spatial arrangement of amino acids which are far apart from each other in a linear sequence। मतलब लीनियर सीक्वेंस में जो पहले कभी बहुत दूर होते थे एक दूसरे से, फोल्ड करने से ये एक दूसरे के पास आ गए। ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमको ग्लोबुलर प्रोटीन्स में पाया जाता है और इसमें जो फंडामेंटल यूनिट है इसे हम कहते हैं डोमेन। नाउ दी highly folded structure is the quaternary structure। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इट इज अ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन और मल्टी चेन एसोसिएशन, मतलब हाउ मोर देन 2 अमीनो एसिड चेन्स एसोसिएट टू फॉर्म अ फंक्शनल प्रोटीन। मतलब अगर ये हम देखते हैं अगर ये दो चेन थी फोल्डेड वाली एंड सपोज दिस इज द अनदर चेन and how they interact with each other, if suppose they are interacting like this, है ना, and how they interact to form a functional protein so that a function can carry out its function properly। सो इस स्ट्रक्चर को भी स्टेबलाइज करने के लिए 4 तरह के बॉन्ड है, वही जो हम पहले से देखते आ रहे हैं, हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। इट अकर्स इन द ग्लोबुलर प्रोटीन, जैसे कि TMV जो होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, हीमोग्लोबिन जो है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, उसमें ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कलर्ड, उसमें ये एक चेन आपको पिंक दिख रही, दूसरी आपको येलो दिख रही,
दो चेन जो है कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और एक फंक्शनल प्रोटीन को जन्म देती हैं। तो आप देखिए हमारा जीवन, हमारा सेल कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितने सुचारू रूप से काम करता है। हमारे बॉडी में कितने सारे प्रोटीन्स है, हमारे कितने सारे एंजाइम्स है, लीवर के अलग होते हैं, पेनक्रियास के अलग होते हैं, मसल्स के अलग होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलग होते हैं, हाउ दे कैरी आउट देयर वर्क प्रॉपरली इन अ वेल मैनर्ड activity. So this was all about the structure of proteins. I have used these books, referred these books for preparing my lecture. Thank you.